ये कमिटमेंट कहीं से भी नहीं है मैम, ओके बट यूजुअली इट इज बीइंग अवेलेबल, तो वो होने की संभावना है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, जस्ट शोइंग यू, यहां से देखिए, दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस, यस सर Appellate jurisdiction. verbatim copy of this कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन, यहाँ से उन्होंने कॉपी किया था अक्षरशः, और दिस वाज कॉपीड अप टू Plenary jurisdiction. एडवाइजरी हाँ Plenary, एक inherent and plenary jurisdiction. इनहेरेंट हाँ अप ये टू भी दिस उन्होंने एम्फसाइज पर्टिकुलर किया पार्ट, है यहाँ जी तक उन्होंने पूरी की पूरी कॉपी की थी, जी एंड इट वाज प्लेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट फाइल एज इट इज। इसके अलावा ये सारे वर्ड्स नहीं थे, नहीं थे सर ये सारे नहीं थे स्लाइड्स पर। Then they came into the another part, constitution of bench. रेफरिंग मैटर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच Even though this part also part of their Yes. PPT. ये कौन से जुरिडिक्शन है, सेक्शन ई, इसमें से 16 सेलेक्ट करके उन्होंने डाले हुए थे। He also selected somewhere this review petition, curative petition. सर ये भी And the constitution of bench, वो वाला जो चैप्टर था, just showing, yes, bench constitution, ये वाला पार्ट था। Did you remember? यस सर ये था ना, राइट सर reference to the larger bench also, it was that a review petition and curative, that's it. सर रजिस्ट्रार की पावर्स का भी डाला था सर। हाँ छोटा सा लाइन था वो, ज्यादा नहीं था। हाँ अहमद साहब अब आप बताइए। सर सब कुछ तो क्लियर कर दिया सर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट सर। नहीं सर, क्लियरिटी यहाँ नहीं है, क्लियरिटी वहां है कि ऐसा क्यों था। ट्राई टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग एंड लॉट ऑफ थिंग यू विल फाइंड आउट। तो उनका लेक्चर सुन के मुझे सर पूरी 200% सिर्फ आपके लेक्चर घूम रहे थे दिमाग में। Whatever he told me, then you are fail into the mission. maybe You are fail into the mission because just I'm saying you, जिस पर्पस के लिए हमने आप लोगों को भेजा था ना, we are fail to identify that. The thing is, initially they said the एक पार्ट में आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं what they said। एक बात ये कर दूं, अजय जी हैं, अजय जी अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ अजय जी। राइट सर। अजय जी चाहे तो आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। राइट सर। यस सर। यस सर। हाँ अब मैं अहमद साहब से थोड़ा इंटरेक्ट करूंगा। आप ये बतलाइए, सिर्फ इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन मैटर करता है फॉर द फर्दर लेक्चर। दैट्स व्हाट आई वांट टू एंटर इनटू द इंटरेक्शन। You have seen certain slides available on the
screen. That was the 8 pages slide. Out of them, first part was the jurisdiction, another part was the constitution of bench, and review and curative. Right? और जब मैं उसकी बात करूं तो and these are the selected from this document only. Right? अब तो क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इफ यू विल गो टू अप साइड, यहाँ से ऊपर चले जाए, बहुत कुछ यहाँ अवेलेबल है, थोड़ा बहुत नहीं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, दिस इज द अनदर चैप्टर. कॉन्स्टिट्यूशन and jurisdiction of the benches, single bench, double bench, triple bench, things are there. जब आप इसकी बात करें, द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की बात करें, and it was the 3, chapter 3 and 4. Which one this? This is 3, constitution bench, chapter 4. चैप्टर 4 अप टू 4 वी कैन से, चैप्टर 4 तक हम ले सकते हैं. और इस पूरे अफेयर्स में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल, but he given place only 8 pages out of them on their slide. Did you notice that? इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात मैं करूं, this particular chapter is started from this particular slide and ended with this particular point. Why? Why not others? This was the lecture was started with the word jurisdiction, and the first sentence came to their mind, that was what is practice and what is procedure. If you people remember. Yes, sir. Exactly. Yes, sir. So this is the question which is coming. What is practice and what is procedure? And differentiation probably, sir. This is a clear-cut questions, and I'm telling you, 99% examinee are failed to answer this question, or even the practitioner of the court. And this question is exactly available into the book of Venkatramani. In chapter 1, that we are, discussed lot of time that we discussed regarding that particular part. What is practice and what is procedure? Everyone knows what is constitution. Everyone knows what is this rules and what is the practice and what is the procedure. For that purpose, one judgment is there which is being cited, where the Supreme Court is properly narrated what is the practice and what is the procedure. That I would like to show you in somewhere in my slide, what I discussed sometimes back, but still I would like to show you. This is the analysis, jurisdictional analysis paper. Let me come to that particular part. One time this question was the probable questions for this AOR examination, and it was asked also. Can you see the first question?
Yes, sir. This is included in your slide. Highlighted questions. Can you see this highlighted question number 4? Yes, sir. Different types of prerequisite. Can you see question number 5? Yes. Whether they discussed yesterday? Question Yes. number 2 also? Yes, sir. Yes, sir. Specifically, out of so many things, they only selected this part and discussed. Why? अजय जी, if you remember, हमने क्या किया था कि कई साल के क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल किया था. Yes, sir. Can you share that slide? Let me see, sir. मतलब वो कहाँ डॉक्यूमेंट मुझे जरा बताइए, then I'll find out. एक मिनट मैं बताता Yeah, give me some time, then give me 1 minute time, then I'll हूँ. मैं find out. पैरेलली देख रहा हूँ सर इतना. एक सेकंड जरा मुझे वो देखने दीजिए. उसका फाइल नेम सिर्फ मुझे बता दीजिएगा. मैं वही चेक कर रहा हूँ सर. जस्ट वन मोमेंट. सर उन्होंने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की भी बात की थी. वो हाँ जी जी. एनालिसिस ज्यूरिसडिक्शन करके डॉक्यूमेंट का नाम है सर. 32 पे अच्छा. है जो जनरली आप डिस्कस कर रहे हैं रोज. हाँ, नहीं मैंने एक डॉक्यूमेंट हमने शेयर किया था जिसमें क्या था कि बहुत सारे साल के क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल किया था ईयर वाइज. याद आया? सर एक ईयर वाइज हमने रखा, मैं दूसरा जिसमें हमने ये पता लगाया था, जिससे हमने ये पता लगाया था कि कैसे कौन से पॉइंट को फोकस करना चाहिए. एक उसके अंदर एक तो यही है सर जो आपने खोल रखा है इसमें. हाँ ऊपर आप चेक करेंगे तो हाँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. मैं जरा एक इसको, है सर AOR एग्जाम स्ट्रेटेजी. AOR डॉट हाँ एग्जाम वो वाला स्ट्रेटेजी. your exam strategy. Let me check it up. AOR डॉट एग्जाम डॉट स्ट्रेटेजी. और ये तो 2 ही पेज है अजय जी. इसी में तो मामला गड़बड़ा जाता है. कुछ इसी तरीके का डॉक्यूमेंट है, बट ये थोड़ा सा लंबा है. उसमें क्या है ना, ये जो हमने किया है, ये शॉर्ट किया है इस पूरे चीज को. उसके अंदर हमने सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही डाला था. मैं अभी That I shared it to the group. पैदल मतलब हर साल का ईयर वाइज क्वेश्चन डाला था. मैं चेक कर लूँ. मुझे वो पार्ट देखने थे, ईयर वाइज क्वेश्चन. सर ये आई थिंक 20 अप्रैल का है ना 2024 का. सर इसमें जो है ना एनालिसिस ऑफ मेन टॉपिक्स जो है ना, ये करीबन 15-16 पेजेस का है. उसमें वो सब क्वेश्चंस है सर. मैं देख रहा था, इधर भी मैं देख रहा था. 2009 से करीबन 2019 से. Yes. If anyone has the, kindly send me that file on WhatsApp. Sir ji, the same one page number, yes, from 14 to 24. एक तो इसी डॉक्यूमेंट में ऊपर क्वेश्चंस हैं सर. हाँ सर इसी में सर. मैं Sir, you can same the same paper page number 15 to page number 24 सारा क्वेश्चन तो डिस्कस किया जाए. यस. हाँ सर. हाँ इसी इसमें किया है. नहीं, this is not the year wise exactly question paper.
what I am asking, हाँ, year wise exactly question paper, otherwise find out the practice and procedure question paper for the year of Sir, इसी में 17, from 18 and 2009 to 2009 19 10 तक years का, इसमें ही है सर। हाँ सर 10 years का तो प्रिपेयर किया सर, द सेम वन। okay, okay, हाँ। yes, 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 yes. पेज नंबर 15 से आगे है सर वो सब। यस 15 से 24। हाँ, और लास्ट पेज पे मनिंदर सिंह सर का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे प्रोबेबल क्वेश्चंस ऐसा लिखा है उसमें लास्ट पेज पे। अच्छा आप एक बात बतलाइए, 15 से 25 जो कर रहे हैं 15 नंबर पेज पे जाइए। हाँ जी गए? यही तो है। ये मैं भी 15 नंबर पेज पर आ गया। किस साल का क्वेश्चन है ये? टेल मी। 2009। 2009 का है सर। all the questions from 2009. No, no, sir. Yes, From sir. to the All नहीं sir। 9, 10, So 9, this 10, is not the 2009 question. This is questions concerned to the 32 only. 32 only. yes, you are Yes, sir। absolutely right, sir. What Yes, I yes. am asking, that is the difference. You are not connecting with us. That's a very problematic. एग्जाम में भी एग्जामिनर इसी तरह से पूछते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे वर्बेटम क्वेश्चन चाहिए। हाँ जी। This is only लेकिन for Article लेकिन 32. You are discussed whole. this is the question only confined to 32. There is a huge difference between them. Yes. That's only for an Then article. why are you referring this? This is exactly diversion from the point. You are absolutely right, sir. अजय जी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, they are very silent. They are finding the point. Question is, मैं 2007, 2008, 17, 18 और 19 के क्वेश्चंस को मैं देखना चाह रहा हूं कि व्हाट वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग जुरिडिक्शन। There were one questions regarding the jurisdiction, which was the 15 marks. What was that question? That question is the highest probable question this time for you. Exactly, I am finding the question. मैं क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। 2000 वो मुझे 2019 का देख लीजिए या 18 का, 18 या 19 का क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है। अपने ड्राइव में क्वेश्चन पेपर्स भी अलग से रखे हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा सा उसको आप रुकिए, मुझे देखना पड़ेगा। और हमने रख रखा है, बट दिस इज द मिस अप ऑफ सो मेनी टाइम्स, यू नो, मैंने बहुत सारे फोल्डर्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन किससे रिलेटेड था सर? That is the question is confined to the jurisdiction. First question ही है। Briefly explain the different jurisdictions exercised by Indian Supreme Court. 12 मार्क्स का क्वेश्चन। Exactly. 2018 ये 18 का। 2018 का क्वेश्चन नंबर 1। 2018 क्वेश्चन नंबर 1। अजय जी जरा एक बार और प्लीज रीड कर दीजिए। Briefly explain the different jurisdictions exercised by Indian Supreme Court. कितने नंबर का है? क्वेश्चन नंबर 1 है सर। मार्क्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन है सर ये। यस, अब आप समझ लीजिए, फिर से एक बार और रिपीट करवाएंगे। आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आई एम अनएबल टू टेक ऑन स्क्रीन। वो डॉक्यूमेंट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कहाँ है? मैं आपको शेयर कर देता हूँ सर दोनों क्वेश्चन पेपर्स व्हाट्सएप। हाँ प्लीज, मैंने उसको आप शेयर कीजिए। मैं 2000 उसके पहले वाला भी शेयर कीजिएगा अजय जी। 17 से लेके 19 3 पेपर शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ। हाँ प्लीज प्लीज। बट एनीवे टिल देन, जब तक वो आ रहा है तब तक मैं आपको कुछ अलग एक्सप्लेन करूं। Whatever was the selected topics discussed during the lecture? सर आर्टिकल 317 सेक्शन 14(1) राइट जरा टू सुन लीजिए इन्फॉर्मेशन। सर, प्लीज आप सुन लीजिए, मेरा सुन लीजिए प्लीज। आई एम सेइंग समथिंग डिफरेंट।
these topics are the most probable area where the question is coming. And number one. Number two, he also talked about three phrases and one emphasized on one question. That question was, what is the substantial question of law as the interpretation of the Constitution? And for that purpose, and in the reference of that, he referred the Sabrimala case regarding substantial question of law. ये नहीं कि सबरीमाला केस आ रहा है, सबरीमाला केस आ रहा है, सबरीमाला केस आ रहा है. This context, this is not the leading cases paper. This is the practice and procedure. अजय जी अभी रहने दीजिए, हम कल सुबह में स्लाइड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. We'll take up. क्वेश्चन पेपर्स तो भेज दिए, जो आया है उसको हम कर लेंगे. राइट सर. Even the last year question आप देख लीजिए. Last year question was the very tactical questions last to last years regarding review petition, and everyone has failed to answer. Exactly. The point is this, उन्होंने कौन कौन से एरिया आपको कन्फाइन किया आउट ऑफ लॉट ऑफ सिलेबस. एक सर्टेन एरिया, what was that area? First area is the jurisdiction of the Supreme Court. Second area is high probable area. Second area is constitution of the court. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट के अंदर पहले रूल में ये था कि देयर वुड बी अ समर वेकेशन और विंटर वेकेशन. अब वो समर वेकेशन और विंटर वेकेशन का नाम बदल गया. अब समर वेकेशन और विंटर वेकेशन के अंदर ये कह रहे हैं पार्शियली वर्किंग कोर्ट, एंड दैट्स द ओनली अमेंडमेंट. व्हाट वाज द अमेंडमेंट? सर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दूंगा सर. 2016 का जो पेपर है उसका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस jurisdiction exercised by the Supreme Court with reference to the constitutional or statutory provisions for the same, the period of limitation for filing and the court fees. 25 मार्क्स का क्वेश्चन है सर. एग्जैक्टली. ये जो है ना, कितना कब का क्वेश्चन है? 2016 का है सर, वो भी आपको कॉपी शेयर कर रहा हूँ. 2016 का क्वेश्चन नंबर 1. यही क्वेश्चन तो मैं ढूंढ रहा था. ये 25 नंबर का होगा. 25 नंबर का है सर. हाँ, अब जरा देखिए, ये 25 नंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 1 और इवन 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 भी होगा. 21 का बंदी सर. 17 का 2017 में सर सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रेशन grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter past or made. ये नहीं, यही दोनों रख लीजिए. 2016, 2018. राइट सर. 17 में नहीं है. 19 में भी शायद पूछा है. 21 में है सर पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है. 21 में देखें सर. 21 का फर्स्ट क्वेश्चन जरा रीड आउट कीजिए, आपके सामने है तो. What are the different jurisdiction exercised by the Supreme Court of India? Briefly explain them along with their source in the Constitution of India. ये 10 मार्क्स का है सर. जी. ये 10 नंबर का है जी. अब जरा देख लीजिए, पहले 25 मार्क्स, फिर 12 मार्क्स एंड फिर 21. 2021 का कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन सर, पार्ट 1 का. 2021 का क्वेश्चन नंबर 1. जी. एंड मार्क्स कितने हैं इसके सर? 10 मार्क्स. जी. आप लोग क्या कीजिए, ये तीनों क्वेश्चंस को पिकअप कीजिए. ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ रहा है. अब तीनों सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट वेरियस ज्यूरिडिक्शन पे फोकस्ड है. सर तीनों में रिपीट कुछ ना कर कुछ दीजिए एक बार डिफरेंस. क्वेश्चन. सॉरी आप यार क्या इरिटेटिंग है, आप दिमाग खराब कर देते हैं. आपके पास सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन नंबर आप करेंगे रिपीट इट अगेन.
नंबर मिस कर गया सर, नंबर रिपीट। तो मिस कर गया तो बाद में आप देख सकते हैं ना। मैं अभी बंद कर रहा हूँ, मैं डिस्कशन ही बंद कर रहा हूँ, इस तरह से बीच में इंटरप्ट करके आई कैन नॉट डू दैट। अंबुजी प्लीज आई एम सॉरी सर 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 कोई चीज की लिमिट होती है सर प्लीज Sir, please, प्लीज सर, please, इट इज अ please, sir. वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन सर, प्लीज वी रिक्वेस्ट यू सर। सर सॉरी सर, सर प्लीज प्लीज सर, छोड़िए मत सर ये। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अजय सर डिस्कशन। आप बताइए सर, अजय सर आप बताइए सर प्लीज। नहीं सर जो ये सर पूछ आ रहे जाए हैं वो वो रिकॉर्डिंग भी तो कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में भी तो आप देख सकते हो, अभी उनसे पूछना जरूरी था। नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही रिलीज है नहीं ना। होगा, सॉरी सॉरी, रिकॉर्डिंग वुड नॉट बी सॉरी रिलीज। सर, सॉरी सर, सॉरी क्या आ है गया, ये, बहुत क्या है बहुत ये? धन्यवाद सर। कोई बात नहीं सर, चलिए नहीं, प्लीज बियॉन्ड द लिमिट। रिक्वेस्टिंग सर, कोई बात नहीं, टेक इट इजी सर प्लीज। पॉइंट यहां पर यह है कि दे एक्सप्लेन द जुरिडिक्शन, दे ऑल्सो एक्सप्लेन नॉट ओनली द जुरिडिक्शन, आपको उन्होंने ये पूरी स्लाइड्स यहां से एक्सप्लेन कराया है। एंड रिमाइंड इट, एक दो मैसेज नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ मैसेज फॉर यू। दे ऑल्सो discussed verbatim of all these things, even the appeal permitted are under article 132, 133 and 134 of the constitution, and read with order this and this. This indicates that you need to read carefully this article as well as the order, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ पूरे जुरिडिक्शन पे फोकस हो। Might be possible it will focus on a particular article or particular order. ठीक है? So my advice is that they can also focus on this particular jurisdiction which is called the appellate jurisdiction, और further आप ये देखें तो आपको extraordinary appellate jurisdiction या original jurisdiction, और even ये कहें तो extraordinary, original jurisdiction, even advisory jurisdiction और inherent jurisdiction and plenary jurisdiction. इतना उसमें से किसी एक को भी पिक कर सकते हैं, ये सबको कलेक्टिव भी पिक कर सकते हैं, which is under the jurisdiction of the court. And similarly they can pick questions for this particular the constitution of bench. If you will see last 10 years question regarding jurisdiction, you have a sufficient idea कि such types of questions they are asking. If you will focus on the 2016 question number 1, 2018 question number 12, and 2000, what was the last, I just forget, 2021 guess. 2018 का भी 1 ही है सर, आई बिलीव। Yes, 18 फर्स्ट क्वेश्चन ही आ रहा है सर, सबसे पहला सरप्राइज यही है। और आपको मैं ये बता दूं, आपके या मुझे मैं अपनी बात बतलाऊं, मुझे ये काम करने में मेरे पसीने छूट गए थे, पूरे 1 महीना लगा। 16, 18, 21 तीनों का फर्स्ट क्वेश्चन। 16, 18, 21, 16 और 18 के बीच में 2 साल का गैप है, 18 और 21 के बीच में 4 साल का गैप, 3 साल का, 18, 19, 20, 21, और 21 के बाद फिर 4 साल का गैप है, मैंने 2, 3, 4 इस बार हाईएस्ट प्रोबेबल। वैसे भी पैटर्न का तो प्रोग्रेशन ठीक है। बाकी न्यूमरोलॉजी और जो भी है उन सबसे भी पूछ लीजिएगा। बट क्वेश्चन ये है कि यदि ऑल जुरिडिक्शन विथ लिमिटेशन यदि आपको लिखने के लिए कहे, ऑल जुरिडिक्शन, ये सातों का सातों लिखाना पड़ेगा, लिखना जरूरी है। कैन वी राइट विद इन 45 मिनट्स? इफ क्वेश्चन ऑफ 2016 एंड 2000, ये क्वेश्चन नंबर 1 2016 का रिस्पॉन्ड करें तो, लेकिन एट द सेम टाइम if you will respond the question number 18, this is having only 12 marks. Is there any change of question? The answer is the huge change. Are you able to identify? You have to attempt it.
क्योंकि उसमें सब कुछ लिमिटेशन वगैरह सब पूछ लिया 2016 में, बट 2018 में it was confined, either it may be confined to the constitutional appeal or otherwise, or it may be confined to the statutory, और दोनों का कॉम्बिनेशन, या कहेंगे कि लिमिटेशन भी बताओ, कोर्ट फीस भी बताओ. बट इन एनी मैनर 2016 का क्वेश्चन एक आइडियल क्वेश्चन है एंड कंप्लीट क्वेश्चन है. whoever is able to answer this question 2016, they are also able to answer 2018, they are also able to answer 2021. So this is the exhaustive question. Now come back to the structure. This is 15 into 2 structure of the question paper. Again 10 into 2 and again 5 into 10. है ना? Am I clear up to this point? So 15 into 2 covers 30 marks and 10 into 2 covers 20 marks and 5 into 10 covers 50 marks, and they said that this is subject to. Meaning thereby maybe little bit altered if required. So can you imagine that this question, the question of jurisdiction, where it would be fit? In the 10 marks, 15 marks, or 5 marks? They said they are expecting little elaborated, it may be little bit lengthy. Have you captured this word? What was the message for you? It was the message for you how much they are expecting on that line. We are expecting. And it was the important part. So I guess this jurisdictional part will fit into the 15 marks. But you need to prepare for all these three things. Just do and start writing, you will cover 15 marks. Constitution of bench, even though one more questions is part of previous year questions, that is repeatedly it was asked for the 3 or 4 times. Question is, what is the difference between the substantial question of law as interpretation of the Constitution, substantial question of law of general importance, and question of substantial question of. So what is the difference between them? Repetitively they ask so many times with the reference or otherwise. 2009 के बाद आप क्वेश्चन देखेंगे, you will find out कि at least 4 or 5 times they asked this question. This is also probable this time. Straightforward this question. You have to understand, you have to be prepared with reference and optimal writing. अब तक तो आपने क्वेश्चन लिखना सीख ही लिया है, प्रैक्टिस कर ही लिया होगा सफिशिएंट. जो नहीं किए हैं वो तो एग्जाम से बाहर हैं, उसकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ. जो कर रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ. And I'm damn sure so many persons are silent in the group. They are working fairly and properly. At least they started. और जो स्टार्ट नहीं किए हैं वो ट्रबल में है. लिटरली मैं आपको बतला रहा हूँ, क्योंकि नाउ द टाइम इज मूविंग वेरी फास्ट. नाउ प्रैक्टिस करने के बाद आपको इन सेम क्वेश्चन है तीनों साइड में. What is the difference? But the time is the very different and the marks is the very different. एक को कवर करने के लिए जो 10 मिनट का है आपको 15 मिनट टाइम चाहिए. जो 12 मिनट का है उसमें भी लगभग 15 मिनट में ही आपको कंक्लूड करना है. और जो 25 मिनट का है उसके लिए हार्डली 30 से 40 मिनट आप दे सकते हैं. कैन यू राइट द ऑल जुरिडिक्शन? मैं आपको ये सारे जुरिडिक्शन यहाँ दे रहा हूँ. आपको मैं एक और चैलेंज दे रहा हूँ. टेक योर 40 मिनट टाइम्स and start copying the word I am writing, saying the copying. How much time it will take?
आप एक पेज लीजिए, उसको कॉपी कीजिए, फुल स्पीड में आप कॉपी कीजिए और आप देखिए कितनी देर में कॉपी कर पाते। एंड देन थिंक कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो कैसे करें। सेगमेंटेड क्वेश्चन है, ये वो पार्ट है एवरी ईयर इन एनी मैनर क्वेश्चन है। माइट भी पॉसिबल कि आपको एक ऑप्शन हो, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि ऑप्शन ना भी हो। स्ट्रक्चर इज क्लियर, 3 क्वांटम है वो भी क्लियर है कि 5, 10, 15 यही क्वांटम है। कौन सा क्वेश्चन पहले करना है आपको, किस क्वांटम को पहले टच करना है और कितने सम टाइम में कंक्लूड करना है, ये भी क्लियर है। और अभी आप यदि क्लियरिटी लेना चाहते हैं तो ठीक है, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर मतलब एडवांटेज। अदरवाइज यू आर इन ट्रबल। You have to decide at the time of examination or time management will collapse. This was the another message and clarity from the lecture. They will ask review and curative. Certainly they will ask the question on them because they focused on that. They also added 2 parts, was the recall application and modification application. Explain that part. This is sufficient for the 5 marks question. So try to fit which part will fit where. They especially discuss Article 142. They specifically compared and discussed regarding appeal under Section 2 with Article 134. They have also properly and fairly reflected 16 appellate jurisdictions statutory provision. These are the potential areas. You can't ignore it. Now, you are enough capable to capture the question. अब बताइए कि लेक्चर अब किसने सुना ध्यान से, क्या क्या सुना। अहमद साहब आते हैं, हम लोग बात करते हैं। Yes, sir. Have you realized that the difference of observing lecture? Yes, sir. Lecture is very much. मैं आपको ये आपके साथ में डिस्कशन करके कुछ चीज एवॉल्व करना चाहता हूँ, कुछ मैकेनिक्स जो बाकी लोगों के लिए मैसेज पास करें, इसलिए मैंने आपको डिस्कशन के लिए कॉल किया है। यहाँ पर ये है कि once you are listening the message, there are certain set of person, माइंड सेट ऑफ पर्सन जो उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कुछ लोग ये सुन रहे होते हैं कि चलो भाई आ रहा है, भाई मैं सुन रहा हूँ, मगन होकर के कथा सुन लिया और हर एक वर्ड पे फोकस किया कि ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, उसको नोट डाउन किया। They doesn't know what is the connection between them. But once you are aware to identify कि मुझे कौन सा क्वेश्चन ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और किस एरिया से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये आपके ब्रेन में है, ये इन्होंने बोला है तो क्यों बोला है, does there any relevance with this any question or in a certain area? हर लाइन को, हर वर्ड को, हर बॉडी लैंग्वेज को यदि आप इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तब आप अलर्टली ऑब्जर्व करेंगे, अदरवाइज यू विल मिस इट। जैसे हमने अभी अभी आपको बताया कि आने के साथ ही उन्होंने पहला ही क्वेश्चन किया था, व्हाट इज प्रैक्टिस एंड व्हाट इज प्रोसीजर, एंड ही एक्सप्लेन्ड आल्सो।
इवन दो ये स्लाइड जो मैंने आपको दिखाया है, इसमें आपको ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत मुश्किल सवाल है, ये आता भी है, आपको मैं दिखाऊं। See, this is the certain judgment which is the important for your examination. If they will ask regarding scope and pre-condition, then these two judgment is the very important. And the another part, मैंने ये segment किया हुआ है कि किस segment के लिए कौन सा judgment important है। One thing more, 142 they discussed, review curative they discussed, specifically they discussed the recall and review. Curative was there. All jurisdictions are the important part. Already you may incorporate the so many things. Sir, can I add something? Yes, please. तो इसमें आई ऑल्सो नोटिस कि उन्होंने वो तमिलनाडु गवर्नमेंट वाला जो बिल वाला केस था, सर उन्होंने काफी बार रिपीट किया कि आप ये लेटेस्ट जजमेंट पे उन्होंने मतलब ही प्रेस्ड अ लॉट, particularly this Tamil Nadu which covered reference jurisdiction of advisory jurisdiction. Exactly. So this judgment is not only the judgment I already discussed yesterday. This is associated with the article 143, and the very pertinent question for the article 133 is, and the reference is there, abhi in hand, latest reference. So probability of what is this reference jurisdiction, they can ask for the 5 marks, and they will expect you support certain recent activity, recent event, and this is the recent event. So that's how you can focus your preparation for the exam. And that's the only objective you must have in your mind during discussing that, observing that lecture. यहाँ पर आपके पास मैंने यहाँ तक नोटिस किया था कि at the around 26 यानी 6:26 total maximum apparent into the lecture was 876. 876 लोगों को मैंने देखा था उस लिस्ट में, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। अराउंड 800-850 बहुत लोग मिस भी किए होंगे, 1000 लोग तो अपियर होंगे एग्जाम में, ये तो तय है। They are in fray, and this is not the very short number. This is the very exciting number. कितने कंपटीटर हैं वो आपके सामने है। ये किसी जमाने में 400-500 हुआ करते थे, but now this number is increased. Structure is very much clear, 15 into 2, 10 into 2, 10 into 5. So your time should be set for that. First 30 marks, how much minutes are there? माने 50 marks जो है ना वो ग्रुप ए, बी और सी की बात करें तो 50 नंबर आपको 1.5 घंटे में, 90 मिनट्स में। और दूसरे पार्ट को यदि आप आधे घंटे का टाइम देते हैं तो फर्स्ट पार्ट को आपको 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। शुरू की स्पीड कैसी होती है? तो आधे घंटे में 15 मार्क्स का करें और नेक्स्ट आप कर लें इसके लिए
तो एवरी क्वेश्चन हैज, देखिए एक क्वेश्चन में आपका फ्लो शुरू हो जाए तो शुरू हो जाए, स्ट्रक्चर बन जाए ब्रेन में तो वो चलना शुरू हो जाएगा। आपके लिए सिर्फ टास्क हमने ये सेट किया है कि 2016 का क्वेश्चन नंबर 1, 2018 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2021 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए। क्वेश्चन वेबसाइट पे अवेलेबल है, पेपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, उस क्वेश्चन को पिकअप कीजिए, कॉपी ओपन बुक कर लीजिए आप। तीनों फ्लोट कर दिए सर ग्रुप पे, तीनों क्वेश्चन पेपर्स डाल दिए। हाँ, आप ओपन बुक कर लीजिए, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन को कीजिए और वेल विद इन टाइम करने का कोशिश कीजिए। एक बार नहीं, दोबारा कीजिए, दोबारा नहीं, तिबारा कीजिए, एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट लीजिए। एंड एक काम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिंस अ डे, माने एक दिन के अंदर इसको फाइनलाइज कीजिए। यदि आप इसको पेंडिंग रखेंगे ना, तो आप लेक्चर खत्म होते 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 आपको इतना सारा कुछ पेंडिंग हो जाएगा कि फिर वो कहीं से भी ऊन की तरह उलझ जाएगा, कोई एंड नहीं मिलेगा। And Sir, I at would the like end, to you ask will two think more the only thing you will think, no, not this time, next time will appear. You'll find so many things, so many challenges is waiting for you. In fact, the loose motion, in fact, the chicken pox, in fact, so many heat waves, everything will wait for you on that point of time. They'll give you, take the excuse, not sit into the exam. Yes, Benis, गुड मॉर्निंग सर। good morning. sir. सर मेरा एक सवाल था, उन्होंने जो जुरिस्डिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट करा है ना, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का आ सकता है क्या? सी गुवाहाटी और उसका जुरिडिक्शन नहीं है। सी आपको मैं एक चीज बतलाऊं, लास्ट डे आई एक्सप्लेन्ड रिगार्डिंग ट्रांसफर जुरिडिक्शन, आर्टिकल 139A, if you remember. Now India is the very diverse thing, so many things are available here. There is a one high court in the northeast region, that is the Guwahati High Court. So Guwahati High Court have the different benches into the different states. This High Court is for all the 7 sister states, isn't it? Or certain group of states, isn't it? If someone transfer a matter from state A to state B within the Guwahati High Court itself, where they have to approach, Guwahati High Court or Supreme Court? Guwahati High Court. But so many person who will sit into the examination, they will think this is transferring from one state to another state, so there is a state change, so we should approach to the Supreme Court. So they highlighted that differences. Please focus on that part. And this is a clear-cut trap. If you will miss it, lose the marks. यदि 5 नंबर के सवाल भी इस पॉइंट पे आ गए, तो आपको क्या करना है? जस्ट थिंक इट, दिस इज कंसर्न टू द ट्रांसफर जुरिडिक्शन ओनली. Someone will realize after the examination, taking the question paper and discussing with lot of person, verifying them. आपको एडवांटेज है, आप पहले प्रिपेयर कीजिए उसको. That is my point. Have you realized how sensitive question can be raised from this particular part? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर कितने स्टेट आ रहे हैं? इवन गोवा से मुंबई केस ट्रांसफर करने की बारी आएगी
Goa से नागपुर. So this is being transferred from Goa Union Territory to the Nagpur. Which High Court you should approach, or Supreme Court should approach. Now इस तरीके के मॉडल कहाँ कहाँ अवेलेबल है. आपको पंजाब से हरियाणा ट्रांसफर कराना हो, what you will do? Where you will approach? चंडीगढ़ और सुप्रीम कोर्ट. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. लेकिन उसी जगह पर गुड़गांव से दिल्ली ट्रांसफर कराना हो तो क्या करेंगे? Then the Supreme Court is there. So Supreme Court. you have to take decision, and decision must be founded on certain reason. Otherwise, there is a problem. उन्होंने कहा कि ये सारे एरियाज हैं, यहाँ पर मैं फोकस हूँ, मतलब पूरा क्योस नहीं है. पहला पॉइंट मेरा यहाँ था कि यू मस्ट रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल केयरफुली, मेमोराइज इट, जो हमने बहुत पहले से कह रखा है, and also focus of this particular order versus whatever is referring here. केयरफुली आप उसको एग्जामिन कीजिए, क्योंकि ऑर्डर भी इन फ्रे है और वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो या कोई ऑर्डर का कोई पर्टिकुलर रूल हो सकता है या ओवरऑल हो सकता है, बट एनीवे आपको ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर 6 तक तो बिल्कुल ढंग से पढ़ना है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, एक्सेप्ट 1 to 6. अब इन सारे ऑर्डर्स पे आ जाइए. ऑर्डर को भी पढ़िए, आर्टिकल और सेक्शन को भी पढ़िए, कंपैरेटिव पढ़िए, इंटर कंपैरिजन, इंट्रा कंपैरिजन, और उसको आप तैयार कीजिए. और सिलेबस और पॉइंट बिल्कुल कन्फाइंड है, क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट आपके सामने है. जो भी क्वेश्चन इन सारे एरिया से आपको दिख रहा है, पिछले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में वो सारे मिल जाएंगे. I don't think someone will prepare and share with you. Everyone has to work on that line. Am I clear up to this point or not? मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए शेयर करूं, फिर मैं आपको (2018) (2021). Let me show you the question. These are the very important part, 2021 and 2006. See, this is the question of 2016. And the instruction is very clear. Just read this part. Question number 1 is compulsory. Out of 100 marks, meaning thereby they are expecting at least you must know all the jurisdiction of the court. And the question is this: short and clear. This is on your screen. And this is also, you can say, this part. This is question number 18. 18 की बात कर लेते हैं, इसकी भी बात कर लें. (21) की बात भी कर लेते हैं.
Here it is mentioned, sir, sorry sir, one thing. In this question, they are mentioned briefly explain them along with their source in the Constitution of India. So you're not touching the statutory part. That is the difference. It is 10 marks question. Here it is confined to the Constitution of India only. आप देखिए इस क्वेश्चन की बात जब हम करते हैं यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन ये है, छोटा छोटा 2 लाइन का है, डिस्क्राइब। यहाँ पर देखिए एडिशन पार्ट है, डिस्क्राइब ब्रीफली the various jurisdiction exercised by the Supreme Court with, देखिए 2 पार्ट है, डिस्क्राइब ब्रीफली, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, with reference to constitutional and statutory provision for the same. Additionally, there was something different which is called the period of limitation for filing and the court fees payable on the same. So आपको क्या क्या लिखना था, कोर्ट फीस भी लिखना था, लिमिटेशन पीरियड भी लिखना है, इफ एनी, स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी लिखने हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी लिखने हैं, कंप्लीट जुरिडिक्शन आपको लिखना है, विच इज हियर। इसमें कुछ भी चीज नहीं बचेगा, एंड दिस इज इन दिस पार्ट एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर टू अप टू ऑल द 7 पार्ट, along with the court fees and limitation that is left, which is not there. इसमें से कोई भी चीज छूटना, आप अपने नंबर को लूज करेंगे, क्योंकि यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन या एडवाइजरी जुरिडिक्शन की बात हो रही है और इस जुरिडिक्शन के यदि 5 पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन पे, और आपने सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट दिया है, तो यू विल डिजर्व द ओनली मार्क्स ऑफ इन सेम प्रोपोर्शन। तो 133(1) एक अलग चीज है, 133(2) एक अलग पार्ट है, रेफरेंस 317(1) इट्स अ डिफरेंट पार्ट, एंड ऑल आर द डिफरेंस। एंड इवन डिफरेंस जुरिडिक्शन की बात होती है तो आपको इसके साथ ये भी, मतलब सेक्शन 14 ऑफ द आरटीआई एक्ट एंड सेक्शन 17 ऑफ द आरटीआई एक्ट एंड ऑर्डर दिस रूल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल, इसको भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। एंड सेक्शन 257 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इतने तरीके से रेफरेंस आ रहा है। If you will ignore something and they will ask the particular reference jurisdiction, तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि रेफरेंस जुरिडिक्शन में सिर्फ कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, तो वो आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी बात हम कर लें, यहाँ पे, यहाँ क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, briefly explain them along with their source in the constitution. So their source in the constitution ये clear है, so statutory part के ऊपर ये फोकस नहीं है। इतनी छोटी सी चेंजेस you have to realize before the exam। और यहाँ देखिए, व्हाट इज द डिफरेंट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज बाय द सोर्स, यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, कोर्ट फीस नहीं है, अदरवाइज दीज आर द वेरी सेम थिंग। दिस इज द एनालिसिस ऑफ द जुरिडिक्शन, कितने तरीके के जुरिडिक्शन है। तीनों क्वेश्चन को आप आंसर कीजिए, आप समझिए। यहाँ पर तो वो सारे जुरिडिक्शन आपको देने पड़ेंगे, दैट जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एप्लीड जुरिडिक्शन, डिफरेंस जुरिडिक्शन, इनहेरेंट जुरिडिक्शन,
सारे जुरिडिक्शन को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, सब्सटेंशिएट करने पड़ेंगे एक दो एग्जाम्पल के साथ। ये है कि कितने जुरिडिक्शन, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट। दिस इज अ वेरी हॉट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप जब तक इस क्वेश्चन का सवाल नहीं लिखेंगे, इसका नहीं लिखेंगे, तब तक आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगा। And next question is according to Article 142 of this, according to the Supreme Court in exercise may pass such a decree and all. So this is concerned to the Article 142 and 141. So similarly, this time is this place will occupy by the Article 143. Of course, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है जो उन्होंने कहा कि 136 इज द ब्रेड एंड बटर। इसकी बात तो हम करेंगे ही करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहां पर आप देख लीजिए। तो द पॉइंट इज वेरी क्लियर। नाउ question is before you, answer is before you. Expend your time, write answer of this particular questions. तीनों क्वेश्चन को आपको लिखना है, टाइम नोट करने हैं, एंड फिर कल आपको बताना है कि कितना टाइम लगा आपको। Sir, may I tell something, sir? एंड अगेन मैं आपको फिर से एक चीज और बतला दूं। द ऑडियो इज ऑलरेडी अवेलेबल इनटू द ग्रुप ऑफ द लेक्चर शेयर्ड बाय। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि भाई आपका ये छूट गया वो छूट गया। ऑडियो है, हेडफोन लगाइए, सुनिए, समझिए, और आप लोग खुद गेस कीजिए कि व्हाट नेचर ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट हाउ मेनी मार्क्स मे बी अवॉर्डेड। तो अपना एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। यू आर एबल टू फाइंड आउट बाय दिस डिस्कशन। ये क्लियर हो गया है कि हाउ विल यू डेवलप द फोकस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट। डोंट फॉरगेट, यहाँ ना सबरीमाला पूछ रहा है और ना ही तमिलनाडु वाला कोई केस पूछ रहा है। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू ड्रैग योर अटेंशन। एंड इसके पीछे क्वेश्चन ये था, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे वाले के पीछे ये आइडिया ये था कि रेफरेंस जुरिडिक्शन। सो अंडरलाइंग प्रिंसिपल को पकड़िए, उसके लिए इसका सब्सटेंशिएशन है ये। बस इससे रिलेटेड आपसे पूछने नहीं जा रहा है। उनका कहना, मैसेज क्लियर है कि व्हाट एवर द लेटेस्ट जजमेंट कनेक्टिंग टू डॉट, उसको आप रखिए ब्रेन में, सो दैट यू कैन सब्सटेंशिएट इट। Also, two more questions is there for you to answer this question. That is, what is the practice and what is the procedure? And what is the practice and procedure? ये third question. ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, और अपने आप में आप देखिएगा कि does this sufficient to fetch the complete marks? Have you incorporated में कोई एक ऐसा एंड तो नहीं है जिसकी वजह से नंबर कटे? Examine it. So done for the day. Sir, may I ask आप सबने लेक्चर सुना? Sir, One by one. हाँ प्लीज। सर, उन्होंने पैलिनरी जुरिडिक्शन के बारे में भी स्पेशल बात की थी, तो मे बी वो एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और उसमें उन्होंने डिवोर्स ऑफ इररिवर्सिबल ब्रेकन डाउन में शिल्पा शैलेश बाय जस्टिस संजीव खन्ना, फिर दिल्ली मेट्रो केस के बारे में भी बात की थी। What I said right now, वो केस को डिस्कस करना चाहेंगे? नहीं, केस को नहीं, बट डिस्कस करने के लिए बेसिस क्या होगा? These are the शिल्पा वाला जो केस है, खन्ना जिसमें थे, it was literally confined to the Article 142.
Right, sir. When Article 142 can be exercised, this is connection to Article 142. See, what was in that case? Irreversible breakdown. Brought up in a transfer petition under 139. Exactly. So lot of things was there. So वहां पर जो है ना, कोर्ट कब inherent jurisdiction under Article 142 will invoke. Right, sir. So he was saying that citation with reference to that particular Article 142. So source is the Article 142. Right, sir. Got For it. the substantiation, this citation is there. And like this, lot of citation is available. Like एक पेड़ के ऊपर जितने पत्ते होते हैं उतने citations होंगे, या जितने फल होते हैं उतने तो पक्का है. सही है सर. आप लोग सोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते. मेरा फोकस ये है, आप लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं उस लीव या फ्रूट पे, एंड पे, जबकि उनका मैसेज था कि कनेक्ट करो विद द सोर्स. सोर्स के साथ कनेक्शन चाहिए. राइट सर. सर आई वाज थिंकिंग लाइक दैट कि ये अलग एक क्वेश्चन आएगा. आप सोच लीजिए. यू आर फ्री टू थिंक मैम, यू आर फ्री टू थिंक, बट उस थिंकिंग के पीछे सम यदि लॉजिक और रेशनल लगाना चाहते हैं तो जस्ट रिव्यू द लास्ट ईयर क्वेश्चंस. राइट. आपकी थिंकिंग बहुत ही नैरो मने यू नो कन्फाइन हो जाएगी. ठीक है सर. अदरवाइज बहुत कुछ ऐसे चीज भी थिंकिंग के अंदर आएंगी जो जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है. So always consult the previous year questions at least 5 to 10 years. You will find out the clear way कि what kind of question may be asked from this particular part. और पिछले बार भी आपको दिखेगा कि इस क्वेश्चन का कैसे साइटेशन से कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है, क्या वो पूछते हैं और हमको कैसे सब्सटेंशिएट करना है. Even you will get the lot of idea how to write the answer. Okay sir. Yes. Sir, I feel there were a few other topics that were discussed, like difference between 226 and 32, and 136 subsection 2 where SLP when it cannot be filed, and also the few legal maxims were discussed, sir. Few legal maxims like. Sir, one thing I'd like to tell you, once they discuss all jurisdiction, what Yes, left? What left? Nothing left, na? Yes, I sir. also said in the earlier, it may be the entire question will confine to the entire jurisdiction, or may be confined to the appellate jurisdiction or original jurisdiction, or even may be confined to a particular article, right? So you may have to prepare for that. But the question is this: once you will prepare the entire jurisdiction, things Okay. would be very convenient for you. So in one go, you have to go through the everything and you can consolidate at one place, right? Okay. So a lot of things will cover. So automatically the smaller part or bits or amplifying part on a particular point, this is also would be covered. So things would be under your control with pen and page. Okay. That's the point. Okay. ठक्कर साहब कुछ कहना चाह question, रहे sir. थे. ठक्कर साहब कुछ कहना चाह रहे थे. मैं जरा ठक्कर साहब से बात करना. सर उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा था कि लास्ट में कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं टू चेक द कांसेप्ट ऑफ. हाँ, एग्जैक्टली इट वाज द मैसेज. वो ये उन्होंने ये कहा है कि सिचुएशनल बेस्ड मींस व्हाट केस स्टडीज. एक केस मैं आपको दूंगा और आप बताइएगा इस केस में कहाँ क्या आता है. 2019 का पूरा क्वेश्चन देखे, 19 या 21, लेट मी जस्ट शो यू. नहीं, वो चला गया. 19 का क्वेश्चन आप देखेंगे, 18 या 19, 18 नहीं 19 का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन सिचुएशनल सेंट्रिक. मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को जब आप रेफर करेंगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि
सर्कमटेंशियल क्वेश्चंस किस नंबर का और कैसा होता है. If you want to see the question, that question is already available in the previous years क्वेश्चन पेपर. उसको जरा एक बार आप देखेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चंस हैं और you have to attempt to that particular questions to get the idea about the time and flawless writing into the exam. So now you have to take a lead and go to that particular point and start working on it. Sir, one question, sir, already. Murari ji, please. Sir, question number 1 of 2018, just we discussed 10 mark question as compared to the 25 mark question in 2000 earlier. So the second part of this question is, what are the source of this direction in Constitution of India? So first part answer should also be influenced by this, or we should mention all first, then only give the source of. This is 10 question, 10 marks question. So मुरारी जी, मैं तो पास कर गया, अब आप सोचिए. Because पहले में सब सारी जुरिडिक्शन मांग रहा है, ऐसे लगता है. अरे सर, मैंने बोला ना, मैं तो पास कर गया, अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है. The question is this, you have to think it. Does this allowed within the time? That's what my question is. See, that's not your question, that is your answer. अगर सारा लिखेंगे तो फिर तो टाइम नहीं मैनेज होगा. You have to decide it. You have to decide it कि कहाँ कट शॉर्ट करना है आपको, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन है, 15 मिनट टाइम है. फोकस उसी पे करना जो पूछा है, ठीक है. नहीं, क्या कर सकते हैं आप और क्या करेंगे आप, वो आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना है, और क्यों लेना है वो भी आपको रीजन वहां रहना चाहिए. इसलिए मैंने बोला है कि मैं तो निकल गया, अब आपकी बारी है. ठीक है सर. इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी टच किया था शायद, इफ आई रिमेम्बर. ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है. एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत डाउट क्लियर हो गए. सर, मैं डाउट पे फोकस नहीं हूँ, मैं अप्रोच पे फोकस हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज शाम की जो डिस्कशन होगी वहां आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे. एंड सेम टाइम मुझे लगता है कि टुमारो मॉर्निंग आई विल सिट फॉर सम टाइम एंड विल ऑब्जर्व कि आपने क्या क्वेश्चन वहां से एक्सट्रैक्ट किया. आर यू एबल टू एक्सट्रैक्ट द क्वेश्चन, और आर यू एबल टू पिक अप द पॉइंट कि हाँ ये. सी, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, बहुत सारे ड्रोन गिरे हैं. अब क्या है कि someone is doing, क्या ड्रोन लेकर के घूम रहे हैं कि ड्रोन का कुछ पार्ट मिल गया, उसको लेकर के न्यूज में घूम रहे हैं, न्यूज वाले घूम रहे हैं, इसने ये मार दिया, उसने वो मार दिया. बट द रियल एक्सपर्ट आर देयर, दे आर थिंकिंग अबाउट कि कैसे किया, व्हाट वाज द कोऑर्डिनेशन लेवल, व्हाट वाज द प्रिपरेशन लेवल, हु इज द स्ट्रॉन्गर, आगे वाले समय में कैसे डिसाइड होगा. सो आपकी लोकस बदलती है, आप जनरल पब्लिक की तरफ हैं, चौपाल पे बैठ के डिस्कशन करने वालों में है या एक्सपर्ट वालों में है, दैट इज, एंड ये डिसीजन आपके हाथ में. इस एग्जाम के लिए यू आर ऑन द पार्ट ऑफ एक्सपर्ट, क्योंकि वो मोस्ट एक्सपर्ट भी बात है ना, ऑब्जर्वर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटर की बात कर रहा हूँ. कुल मिलाकर के यदि मैं कंपेयर करूं वार्ड लेवल पर, तो ये उस पायलट की बात है जो फील्ड में जाकर के उड़ा रहे होंगे, क्योंकि एक बार यदि गोली चली तो उनकी लाइफ गई. उनका एक अलग रोल होता है उस समय एग्जीक्यूट करने में, पूरी टीम की पूरा कोऑर्डिनेशन वहां पर एकदम क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, स्टार्ट टू एंड टू एंड, क्योंकि वहां पर एक फेलियर पूरी तरीके से बदल देता है कहानी. और बाकी सारे सुनने वाले, समझने वाले, न्यूज फैलाने वाले, गॉसिप करने वाले सब लोग पड़े हुए हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो लोग ऑब्जर्व करेंगे, मैच देखेंगे. यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट में आपका रोल कहाँ है? एवरीवन हियर आर द परफॉर्मर.
तो आपके ब्रेन में कंफ्यूजन सीधा सीधा मतलब थोड़ी सी लापरवाही गोली लगी सटाक से, एंड यू आर आउट ऑफ एग्जाम। सर उन्होंने ये जो आपकी मिस्टेक कैन नॉट बी अफोर्डेड। मेरे में हु कैन अफोर्ड, मतलब आपके लिए नहीं अफोर्ड होगा। माइंड इट। सो आपको कितना अलर्ट और सीरियस रहना है वो आप देखिए, क्योंकि आप एक कहें तो हर एक के पास एक एक रफाल दिया गया है कि उड़ो, बट सेफली होम आना है। Sir, what can type of a question come for legal maxim or jurisprudential definition? उसके Ma'am, बारे we में given the examples and that we did very elaborated form. Ratio decidendi, obiter dicta, doctrine of precedent, doctrine of merger, sub silencio. We elaborately in detail we have discussed, and that is more than sufficient. What else? यदि कुछ exceptional आता है तो आपके पास ऑप्शन भी होगा। Of course, it will come into the 5 marks. Okay. सर एक छोटी सी बात थी, काफी देर उन्होंने बेंच पे एक्सप्लेन किया, लगभग 4-5 मिनट तक बेंच कंपोजिशन एंड देयर रोल्स पे काफी देर किया, और उसके साथ साथ उनके एग्जांपल भी दिए कि 3 जजेस बेंच है तो सेंटेंस डेथ दे सकता है, 11 जजेस का है तो उसमें कर सकता है राज्यों में। तो क्या ऐसा कुछ संभावना है बेंच के ऊपर? Of course, yes. Constitution of bench a reference to the larger bench. सर ये एक सवाल है, क्लियर कट सवाल है। नहीं, हम जो बना पाए, हमने सवाल रात को सोचा वो ये था कि व्हाट आर द रोल ऑफ द सिंगल जजेस, डबल एंड सो ऑन, हाउ वेरियस केसेस एंड पिटीशंस। सर फिर आप वो गलती कर रहे हैं, आई थिंक कर रहे हैं। आई थिंक मत कीजिए। लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिए, वहां इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा मुझे आपको। मिला नहीं था बेंच पे, सिंगल मिले थे कि एक तो लार्जर बेंच माने कब कोर्ट लार्जर बेंच को रेफर करती है? सर ये उन्होंने एक्सप्लेन किया जी। किस कंडीशन में क्वेश्चन आए हुए हैं सर, क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखिए उसको जरा ध्यान से आप एग्जामिन कीजिए। यू कांट से नहीं मिला, मतलब आपको भेजा गया कि भेजा हुआ है सर, एक भेजा हुआ है। न्यूक्लियर मैंने रफाल दे करके कि यहाँ पर आपको फाइट करके मैंने बम्बर गिरा के आना है, आप घूम करके आगे बोले मिला ही नहीं। छोटे छोटे विमान है, रफाल बनाना है सर इससे। नहीं, वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है सर, एवरीवन इज द रफाल। नहीं, उस सवाल आप समझिए, नो मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मैंने या यूनिट यहाँ पर आपको लगे हुए हैं, किसी के लिए ये एक्सक्यूज नहीं है कि चलो हम नहीं कर पाए या हम नहीं कर सकते। आपको दिया गया, आप ढूंढिए। They were focusing too much on this bench सर, मैं देख रहा था काफी देर फोकस किया उन्होंने जब एग्जैक्टली। सो दिस इज द मतलब यू नो दिस इज द पोटेंशियल एरिया जहां पर आप जा करके वो क्वेश्चन देखें, कंसल्ट करें और उसको ये करें, क्योंकि रेफरेंस के लिए एक जजमेंट है जस्टिस इनका लिखा हुआ बहुत प्यारा जजमेंट है। I'll share that judgment on group with all of you. उसमें क्लियरली एलिबरेट किया हुआ है कि किस कंडीशन में कैसे केस रेफर हो। और जब शुरुआत में किया so with the reference of that particular judgment you can just शेयर कर दीजिएगा सर उसको। और प्रोसीजर की जब बात कर रहे थे, उन्होंने छोटी छोटी बातें की कि ई फाइलिंग कैसे करेंगे, आपकी वकालतनामा कैसे जुड़ेगा, वो प्रोसीजर में उन्होंने जोड़ा। प्रैक्टिस में जब उन्होंने जोड़ा तो पूरा ज्यूरिसडिक्शन को जोड़ा सर। तो इससे उन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे शायद। वो प्रोसीजर था, उसमें वकालतनामा पे फोकस नहीं था, वो प्रोसीजर था सर। हाँ, हाउ फाइलिंग का प्रोसीजर वो अलग चीज है, बट जो मेनली प्राइम फोकस है वो तो फोकस है। So most of the thing will be focused on that particular part only. जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, so nice, thank you sir, thank you.
सो क्या लेक्चर में से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, इस चीज पे जरा ध्यान दीजिएगा। आज आपसे समझा भी है ये। नहीं, वही मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या देखा, क्या किया, मतलब गए वहां सीन देख करके आए या इंफॉर्मेशन लेकर के आए? नहीं सर, उसमें बहुत कुछ रात को जो आपने भेज दिया ना ऑडियो, हमने उसको दोबारा भी सुना, फिर कहीं कोई पॉइंट मिस हो तो उसको इनकॉर्पोरेट करा उसमें, नहीं, फिर ऑब्जर्वेशन दैट क्रेडिट नॉट गोज टू मी। ये हमारे अहमद साहब हैं जिन्होंने भेजा था मुझे, तो मुझे लगा कि वो तो लॉक है, इसलिए मैं ग्रुप पे भेज दूं इसको। अहमद साहब का भी धन्यवाद, आपका भी सर। बंसल साहब, आप कुछ कहेंगे? आवाज नहीं आ रही है बंसल साहब। चलिए, बंसल साहब की आवाज नहीं आ रही है, बंसल साहब लॉक हो गए हैं। मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगा इनकी आवाज को ठीक करे, तब तक हम लोग आते हैं वापस। न्यूज वाले ऐसे ही कहते हैं। तो कंक्लूड करें आज का, या और भी कोई क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेश्चन? नथिंग सर। नो सर। तो फाइनली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जस्ट प्रिपेयर योर ओन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस लेक्चर से डायरेक्ट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर आप फोकस करें एंड ट्राई टू अटेम्प्ट टू सॉल्व इट। अजय जी, इस एंड पे आप कुछ कहना चाहेंगे? कितना ये फ्रूटफुल होगा? Sir, I believe only this exercise will be of prime importance at this stage. हर किसी का इंडिविजुअल फोकस और क्लैरिटी आएगा लेक्चर के रेफरेंस में अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे एंड आइडेंटिफाई करके उसको लिख कर देखेंगे। दैट इज द कंप्लीट सेट। अगर लिखना छोड़ देंगे तो काफ़ी चीज़ें रह जाएंगी। सर, आर्टिकल 71 से प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिगार्डिंग उन्होंने कहा था, तो उस पे क्या क्वेश्चन हो सकता है? उसको पिछले साल में कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, आप देखिए पिछले साल का क्वेश्चन उठाइए, देखिए वहां 71 से कैसे उसी के सराउंडिंग में होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। हो तो सकता है बहुत कुछ, लेकिन एटलीस्ट आइडिया तो मिल जाएगा। So we can conclude it. Yes, sir. Thank you very much, sir. Have a good day. Thank you, sir. Yes, Thank sir. you. And Thank you so much. clear message Thank you, sir. यहाँ Have a पर great ये day. है। Thank you, sir. You're so kind of you, sir. थैंक यू हमने सर। इलेबरेटली डिस्कस किया है, but आपको एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ सर। हेलो, प्लीज प्लीज सर, मैं आई श्योर श्योर जो नए 22 केसेस है ना, जो ऐड हुए हैं ना, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। फॉर विच पेपर? बिकॉज फॉर विच पेपर सर? बिकॉज For लीगल which मैगजीन जो जुरिडिक्शनल जो टर्म है ना, जैसे ऑबिटर डिक्टा, रेशियो डिसेंडेंडी एंड मेनी मोर, they are clearly explained in that cases. So if anyone read that these new cases and can easily answer the upcoming
question paper. Sir, you are very correct, and I always used to connect every paper is not in isolation, having impact on other papers also. But at this point of time, if someone will start focusing man isko chhod karke and they will run on the 22 cases, what would be the fate of this paper? There is not any option, because एक्चुअली क्या है कि उसमें कुछ 2-3 केसेस ऐसे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की जजमेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है क्या. Are you getting my point? What I am trying to say? At this moment, we are at the paper 1. It is a clear-cut strategic failure to grab the 5 marks questions, go and consult to the 22 leading cases. 22 में 2-3 ही ऐसे हैं. Sir, whatever it may be, जितना टाइम उधर लगेगा ना, उतने टाइम में यहाँ पूरा का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा, और वहां से जो आप लेकर के आएंगे शायद 5 नंबर भी नहीं कवर कर पाए. Did you understand the impact? But the question is this, कि till the examination, जहाँ वो पेपर अपने आप आपको पेपर 4 की तैयारी करेंगे, वहीं से पिकअप हो जाएगा उसी से. हाँ, right. Why especially we need to discuss at this juncture. अभी तो आप ये पढ़िए टेक्स्ट बुक से, आप ये समझिए कि what is this ratio descendant. वो तो जितने भी जजमेंट में वो डिस्कस होगा, वो डेफिनेशन वहां रिप्रोड्यूस होगा कि व्हाट इज दैट. सोर्स में आप पहुंचिए सर. यू जस्ट एंटर इनटू द सोर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. I just already shared the 7 pages document regarding this article 141. Am I right, Ajay ji? 6 or 7 pages, जिसमें कि रेशियो डेसेंडाई और ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है. Did you remember that? No. वो जरूरी नहीं है सर. वो जरूरी नहीं है, उसको क्यों करना है? नहीं, on the constitution. वो भी अच्छा है सर. 141 जो हमने डिस्कस किया था, वहां पर मैंने एक पेज के अंदर विथ लॉट ऑफ साइटेशन, ऑलरेडी ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर देयर. You may verify everything into the leading case. See, why I am saying so, just think, every leading cases, even head notes having the bundle of around 500 pages. So for that purpose, you need to find out, you need to go through the 500 pages. However, the entire this constitutional provision is having into the 4 or 5 pages, the Union Judiciary in their act. Even in the this particular part, what is saying that the handbook of practice and procedure, this relevant portion is confined into the first 60 pages. All the relevant parts. मेरा ये So the question मेरा ये कहना है कि अभी उस तरफ ना जाएं. जाना जो है ना खतरनाक है. Jumping the gun. वो एक ऐसे जंगल में इंटर करना है जहाँ सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होना है, जहाँ एक पेज में सब कुछ मिल रहा है, इसको छोड़ करके वहां जाकर के आप कितना, मान लीजिए एक इंस्टेंस में आपको ये बतला रहा हूँ, एक लाइन का डेफिनेशन, someone is aware about the ratio descendi and that is called the region recorded into the judgment. That's it. हम इतना लिख करके आते हैं, और आप वहां जाकर के उसका 4 साइटेशंस लगा कर लाएंगे. आपको कितने नंबर मिलेंगे, मुझे कितने नंबर मिलेंगे आउट ऑफ 5? 1 marks I will lose. Relative to you, hardly 2 marks. लेकिन ये 2 मार्क्स के चक्कर में मुझे 500 पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, और 500 पेज पढ़ने के चक्कर में उस टाइम को यूज करके हम यहाँ से 80 नंबर आपसे ज्यादा ले जाते हैं. दैट्स द स्ट्रेटेजिकल पॉइंट. वो मैं आपको ये कह रहा हूँ. अभी जहाँ फोकस है, अभी वहां फोकस कीजिए. अभी 22 लीडिंग एडिशनल लीडिंग केसेस में जाकर के इस पेपर को एक्सपॉइल तो नहीं कर रहे. द आंसर इज यस. फुल पॉसिबिलिटी इज देयर कि आप अभी के टाइम को और इस पेपर को एक्सपॉइल करेंगे, और एग्जामिनेशन के दिन पहला पेपर आपका गड़बड़ाया ना,
मैं एक लड़के को जानता हूं, आपको मैं एग्जांपल बताऊं, 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में उसने पेपर 1 जब लिखना शुरू किया इन द ईयर ऑफ 2018-17 मैं मुझे याद है, और उसने लिखना कि पहला क्वेश्चन था, उसमें करना क्या था, 8 क्वेश्चंस करने थे 2-2 नंबर के। ही स्टार्टेड राइटिंग और ही एज्यूम कि हर क्वेश्चन 8 नंबर का है, और पूरे 2 घंटे तक वो पूरी उसी क्वेश्चंस को लिखा। 2 घंटे के बाद जब रेस्ट क्वेश्चन को उसका ध्यान गया, तब वो समझ में आया कि he did the blunder mistake and he stopped the exam until the date वो एग्जाम नहीं दिया। मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट, मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूँ। Why happened this? Because of the strategic mistake that I am talking about। मैं आपको सीधा ये बात ये कह रहा हूं कि आपको अपने टाइम का स्पेसिफिक ख्याल रखना है। उसके अंदर जैसे ही आप उस पार्ट को मेसअप करेंगे, एट योर ओन रिस्क। अभी 22 जजमेंट की बात जैसे ही हमने करनी शुरू कर दी, वी आर एट पेपर 4 एंड टॉकिंग अबाउट द पेपर 1 एंड टॉकिंग अबाउट द पेपर ओनली फॉर व्हाट, कि कुछ माने वो भी क्लियर नहीं है कि कितने, उन्हें 3-4 गिनाए हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड, डॉक्टर ऑफ मर्जर भी है। आप ये बिलीव कीजिए कि जितना आपको आता है, जस्ट बिलीव ऑन दैट एंड लीव इट। उस पर्टिकुलर पार्ट को आप, उसका इम्पैक्ट पूरे पेपर पर कितने मार्क्स पे होगा, हार्डली 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स में आपको ऑप्शन भी है। ऑप्शन की बात यदि मैं करूं, मैं उस क्वेश्चन को छोड़ूं तो पूरे 22 क्वेश्चन को, मैंने 22 पेपर को मैं बाद में उस लाइन पे ले लूंगा कि चलो भाई रहने दो, उधर ही होगा। हाउ इकोनॉमिकल इज दिस? संजय जी, मैं निवेदन करूं सर, एक जजमेंट मैंने इसमें हेड नोट पढ़े थे 22 में। एक जजमेंट ऐसा है जिसमें जुडिशियल डिसिप्लिन और रेशियो डिसेंडेंटी और ऑबिटर डिक्टा के केवल मात्र हेड नोट में 5 या 6 लाइन में पूरा डिटेल में, और वो भी इन द वर्ड ऑफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, वो सब एक्सप्लेन किया गया है और जिस्ट है वो, और वो अपडेट है, रिसेंट जजमेंट में है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल टू रेफर रिसेंट जजमेंट। हाँ बोलो। पता नहीं हमको उन लोगों ने सर, वो मेन पॉइंट आप शेयर कर देना, मेन पॉइंट आप शेयर कर देना, दैट्स विल बी एनफ। हाँ, आई विल इन्फॉर्म इन ग्रुप। सर को शेयर कर देना। हाँ, मैं सर को शेयर कर दूंगा। हाँ संजय जी प्लीज, सर क्या कह रहे थे? एक सिंगल जजमेंट ऐसा है जिसमें 4 प्रिंसिपल केवल 5-5 लाइन में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब द्वारा एक्सप्लेन किए हुए हैं, और ये है जुडिशियल डिसिप्लिन, रेशियो डिसेंडेंटी, ऑबिटर डिक्टा एंड 1 and 2 और अदर्स। बस 4-5 लाइन में 5 आपके प्रिंसिपल, वो भी रिसेंट जजमेंट में आपको मिल रहे हैं, और मैं वो जजमेंट है उसका नाम रेफर कर दूंगा ग्रुप में, वो केवल पढ़ लेना। उसके 4-4 लाइन के 4-5 पॉइंट है, बहुत अच्छा लिखते हैं चंद्रचूड़ साहब। दैट्स करेक्ट। मैं आपसे अब दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, हाउ विल यू यूज दिस थिंग इनटू द एग्जाम इन पेपर 1? इजी लिखते हैं, अगर वो क्वेश्चन मुझे समझाइए सर। मेरा कंसर्न यहाँ क्लियर है। आप मैं कुछ अलग चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप अपने पॉइंट पर स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। यदि 5 नंबर के क्वेश्चन में ये कहा जाए कि इस सब को आप एक्सप्लेन कीजिए, 5 नंबर के क्वेश्चन में ऑबिटर डिक्टा और ये सारे कुछ, या 2 या 3 या 1, कैन यू रिप्रोड्यूस दैट पार्ट फ्रॉम दैट जजमेंट? एक्चुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते इन द जिस्ट। अच्छा, 2 लाइन 3 लाइन में तो लिखना है ना। हाँ, 2 लाइन 3 लाइन में आपको जिस्ट लिखना है। आप 1 सेकंड जरा सा होल्ड कीजिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। 1 सेकंड होल्ड कीजिए। एक सिंगल जजमेंट अगर कोई पढ़ ले तो 2-3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूरे हो जाएंगे उसको, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जरा 1 सेकंड होल्ड कीजिए।
वो सिंगल जजमेंट आई विल रेफर यू। हाँ, आप रेफर करेंगे ना। आप जरा ये बात मेरा जरा देखिए, 2 मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। जजमेंट भी बता दूं मैं कौन सा मेरे पास होगा। नहीं, आप जरा जजमेंट के बजाय मेरा कंपैरिजन, मेरा एनकाउंटर है, उसको जरा आप समझिए ना सर। मैं क्यों मना कर रहा हूँ वो समझिए आप। आप वो समझ नहीं रहे हैं, आप बाकी लोगों को ड्रैग कर रहे हैं सुसाइड करने के लिए। नहीं, मैं एडिशनली बता रहा हूँ, रिसेंट एडिशनली नहीं बता रहे हैं, आप सुसाइड करने के लिए ड्रैग कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वो बता रहा हूँ। ओके ओके। कैसे सुसाइड करने के लिए ड्रैग कर रहे हैं आप, वो अब मैं आपको अभी जरा डेमोन्स्ट्रेट कर दूं। 1 सेकंड लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा। ये हमने स्क्रीन पे लिया हुआ है। ये कितने पेज का है आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? हाँ, ये ज्यादा नहीं है, सही है। कितने पेज के हैं? ये टोटली 7-8 पेज में आपका पूरा कवर होता है, सर लेकिन ये 6 पेज है, मैक्सिमम 6 पेज यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहा है, 7 या 8 नहीं है। कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आपको मैं ये दिखाऊं, थोड़ा सा और आगे मैं पार कर रहा हूँ। ये दिस इज कंसर्न टू आर्टिकल 140। थोड़ा सा, ज्यादा देर नहीं लेकर के जाऊंगा। बाइंडिंग प्रेसिडेंट, और यहाँ पर आप देखिए कितना हाईलाइटेड है रेशियो डिसेंडाई पे। राइट 3 लाइन है, एक्सट्रैक्टेड है। और आपको एग्जैक्ट आंसर बता दूं, द रीजन असाइंड, एंड इसके लिए द रेशियो, यहां से आप देखें ना, यहां से सर, द रेशियो डिसेंडाई ऑफ अ जजमेंट इज द रीजन असाइंड टू द सपोर्ट ऑफ द कंक्लूजन। 1916 साइटेशन इज ऑल्सो देयर। ये एक लाइन है, 1 लाइनर मैं बता रहा हूं सर, 1 लाइनर बता रहा हूं, आप ये समझ नहीं रहे हैं। The ratio is required to culled out from the reading of judgment. Not complete. Obiter dicta 1 liner. Because the observation was unnecessary for the decision pronounced by the court. ध्यान नहीं गया आपका यहाँ। But dissent judgment sir कहाँ है? What is the importance of the dissent judgment? मेरा आंसर शीट आपने देखा है। So recent judgment is from the root, isn't it? रिसेंट जजमेंट के चक्कर में आप कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, जरा ये बताइए ना। यदि मैं रिसेंट, हमारे पास सर मैं हमारे एक पास बात है ना, बता रहा हूँ recent सर, मैं एक बात बता रहा हूँ कि यदि मैं रिसेंट जजमेंट नहीं लिखूंगा, मेरे कितने मार्क्स लूज होंगे? Still we have this. This is good enough. How much marks we will lose? पूरा? नहीं हार्डली 1 मार्क्स, हार्डली 1 मार्क्स। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो टाइम और एनर्जी उधर जाएंगे, उससे कितने मार्क्स पे इम्पैक्ट है वो बताइए मुझे। कितने नंबर एडवांस हम कर पाएंगे वो मुझे बताइए सर। यू आर राइट। यानी 1 नंबर लेने के लिए मुझे कितना एनर्जी उधर खर्च करना पड़ेगा वो मुझे समझाइए, क्योंकि टाइम अभी लिमिटेड है। यदि मैं 22 जजमेंट को पढ़ूं 1 नंबर या 5 नंबर को इनहांस करने के लिए, क्या वो अभी इकोनॉमिकल अफोर्डेबल है? ये मुझे समझाइए। एक्चुअली माना वो उधर है, क्योंकि जितने भी जजमेंट लिखा रहे हैं कि वो सब जगह वो रखा हुआ है, सब जगह अवेलेबल है। या तो आप 1 लाइन का यहाँ पर पढ़ करके आप रेडी हो लीजिए, या उन सारे जजमेंट में से ढूंढते फिरिए कि कौन चीज कहाँ पर है, किस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्या टाइम कितना है। ये तो पहले करना था। यदि पहले आपने कर रखा है देन इट इज ओके। हाँ, राइट। बट डोंट पुश देम राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर वो है कि यदि उधर लग गए तो इधर की पूरी तैयारी गई। मुझे इस बात का डर है। और उसके बाद भी कितना मेरे साथ मैंने कई बार सुनाया है कि एक मेरे मित्र थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे। उन्होंने जीके की तैयारी के लिए, खास करके करंट अफेयर्स के लिए, डेली वो 8 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते थे। Does this not this kind of decision here? एक्चुअली मेरी एडवाइस उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है
सर आर यू, मेरी एडवाइस उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो 22 केसेस में गोन थ्रू हो गए हैं, आई थिंक। सर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लीडिंग केस का पेपर दे रहे हैं वो तो आएंगे ही, उसके थ्रू तो ऐड हो जाएगा। हाँ राइट राइट एट दिस मोमेंट क्यों जाना उसके लिए स्पेशली, राइट। यही चीज जाना तो एक्सप्लेन, पड़ेगा मैंने साहब। कुछ और थोड़ी है उसमें, तो सिर्फ आप साइटेशन क्या लिखेंगे उसमें, दिस जजमेंट इज ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट ऑबिटर डिक्टा, दैट्स इट। उससे ज्यादा आप क्या लिखेंगे, या वहां से कोई लाइन रिप्रोड्यूस करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे, यही करेंगे ना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ जो लिखा हुआ जो आपके स्क्रीन पे है उसमें जो ऑब्जर्वेशन यहाँ दिया हुआ है 1928 में क्या लिखेंगे आप इसमें, आप ये कहेंगे ना कि 1928 का साइटेशन लेंगे, और उस साइटेशन कहाँ गया, 100 बार मैं इस चीज को बता चुका हूँ। सर ये 1928, दिस इज द माधव राव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 SC, it also discussed about, explain about the obiter dicta, observe about the obiter dicta, that's it, observe that। हद से हद ये लिखेंगे कि an observation of the court in the legal question suggests that but not arising in the manner as to require decision, that's it। या फिर देखिए वहां सर, से 4 लाइन वो लिखेंगे judgment- या उसको लंबा एलेबोरेट करेंगे। ये सर एक मिनट, एक रिक्वेस्ट है, मैं वो जजमेंट बता देता हूँ। ये है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। संजय जी एक काम करिए प्लीज, जो आप पोर्शन उस जजमेंट का आप कह रहे हैं ना कि ये वाली जजमेंट है, उसमें से वो जजमेंट का पोर्शन, वो पर्टिकुलर पेज को एक्सट्रैक्ट करके या उसका स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप पे फ्लोट कर दीजिए। लोग मैं वो नहीं कहूंगा, मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि संजय जी आप इस सवाल का जवाब 5 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज ऑबिटर डिक्टा, व्हाट इज दिस, ये समझ लीजिए कि दीज आर द 5 मार्क्स क्वेश्चंस। इन सारे का जवाब आप लिखिए और लिख करके विद द रेफरेंस प्लीज आप ग्रुप पे आप भेजिए, या तो अजय जी को भेजिए या मुझे भेजिए, हम लोग अपलोड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस। एंड वी विल डिस्कस सी हाउ मच टाइम। मैं इतना तो काबिल नहीं हूँ, एक लाइन में मैं असिस्ट करना चाहता हूँ आपको, आप अगर उचित समझे तो। सर ये बात से मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ कि आप इतना काबिल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये चीज मत कहिए, आपके पास वो है, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट टू राइट इट, और आपको एग्जाम में लिखना है, आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके ओके, काबिलियत पे किसी को डाउट नहीं है, आप उसको लिखिए और लिख करके आप ये एसेस कीजिए कि कितना टाइम लगा। आप टाइम भी जरा नोट कीजिए, उसको लिखने में कितना टाइम लगा, और ग्रुप पे सेट कीजिए, एटलीस्ट पता तो चले कि कितना इकोनॉमिकली हम लोग जो टाइम उसमें एक्सपेंड कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है। आप उसको लिखिए और ये भेजिए, और जस्ट 2 चीज आप कीजिएगा, मेरा एडवाइस मानिए आप, यदि आप कर सकते, एक में बिना रेफरेंस और एक में विथ रेफरेंस, 2 आंसर तैयार कीजिएगा किसी 2-3 मॉडल का। अब आप देखिएगा कि दोनों के मार्क्स में कितना फर्क पड़ना चाहिए और क्यों। लेट अस डू सर्टेन एनालिसिस ऑन दैट। लेटेस्ट जजमेंट जो वो कह रहे हैं ना, मैं आपको ये बता दूं, मेरा आंसर सीट देखेंगे 4 पेपर में मैंने एक भी साइटेशन नहीं लगा। लेटेस्ट तो दूर की बात है, लेटेस्ट तो दूर की बात है, मैंने एक साइटेशन तक नहीं लिखा है। आई गॉट द 70 मार्क्स, 73 मार्क्स and so on, 50, 60 and 60 से कम किसी में नहीं मिला। पॉइंट यहाँ ये है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, उसके ऊपर साइटेशन लगेगा ना सर, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एडवांस करने के लिए, और उसके बाद आप लेटेस्ट लगाएंगे ना। यहाँ चक्कर ये है कि कॉन्सेप्ट ही जब आपको पता नहीं है तो सीधा उल्टा करके आएंगे, वो लगा करके कोई फायदा ही नहीं। पॉइंट आप नोट कीजिए, और वो बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए। रिजल्ट के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट को लेकर। चलो, आई विल ट्राई टू राइट अबाउट दिस। समझ गए बात को, क्योंकि ये चीज
यही छोटी सी केयरलेसनेस रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा या रिजल्ट से आउट करेगा। नहीं संजय जी, वो लिखने में आपकी भी तैयारी होगी, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। हाँ, और एक विजन डेवलप होगा कि क्या करना चाहिए। औरों मैं ट्राई करूंगा, फिर भी मेरा एकदम क्लियर कट एक्सपीरियंस है सर। मैं आपको साफ साफ ये बतला दूं, बहुत सारे लोग यहाँ 3 डिफरेंट लेयर हैं। यदि सर्किल बना है, 1 इज द कोर कॉन्सेप्ट, उसके बाद सपोर्टेड जजमेंट एंड साइटेशंस अदरवाइज, और उसके ऊपर लेटेस्ट जजमेंट। यदि बीच में कोर चीज ही नहीं होगा कैसे होगा। तैयारी का ये आलम है, यदि वो पॉइंट कह दिया, हमने ये कहा, मेरा मतलब पूरे लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है, कोई भी नई चीज 10% इंसर्ट कर दिया गया सिलेबस में, लोग 90% जो सामने रखा रहता है उसको छोड़ देते हैं, 10% के पीछे भागते हैं। नतीजा ये है 90 तो जाता ही जाता है, और 10 में से 3-4 से ज्यादा नहीं आता है। दिस इज द हाईली अनप्रैक्टिकल अप्रोच। हम ये नहीं कहने 10 नहीं कवर कीजिए, लेकिन पहले अंदर वाला जो पार्ट है कॉन्सेप्ट कवर कीजिए, उसके बाद दूसरा हम यदि रिसेंट के बजाय, आप जरा देखिए, उन्होंने कहा रिसेंट जजमेंट, हम ये कह रहे हैं कि सोर्स जजमेंट, मतलब पहले, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किस जजमेंट में डिस्कस किया था, वो यदि मैं नरेट कर दूं, डज दिस not would be the impactful? The answer is of course yes, 1 minute. and that is there. Am I and recent यदि सपोर्ट कर दे तो हम, इसलिए हम रिसेंट सपोर्ट करना चाहते हैं ना कि हमको पूरा नंबर मिले। मेरे कहने का मतलब पूरा नंबर लेने के चक्कर में पूरा पेपर को तो स्पॉइल नहीं कर सकते। तो draw a balance line at your own। क्या करना है क्या नहीं करना है एट दिस जंक्चर, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, और उसका एक लिख करके देखिए, आपको अंदाजा मिले। हाँ, मैं लिखूंगा, लेकिन मैंने सजेशन दिया क्योंकि मेरे को ये सारी चीजें समझ में ही तब आई जब मैंने वो जजमेंट के हेड नोट देखे। एक्चुअली रेशियो डिसेंडेंट टाइम क्या है, बाकी चीजें क्या संजय है, जी, मैंने लास्ट ईयर आपका सर लास्ट अटेम्प्ट दिया था लास्ट ईयर का संजय जी आपने? यस दिया था। तो सर मैंने भी दिया था, और हर क्वेश्चन के साथ आई हैव रेफर्ड 1 जजमेंट। डिस्पाइट ऑफ दैट सर ही हैज गिवन मी 45 मार्क्स एवरी आंसर। सर मैंने राजीव सर के साथ शेयर करिए, यू सी माय आंसर, आई हैव रेफर्ड एवरी क्वेश्चन आंसर विद द जजमेंट। इवन दो जो सब साइलेंट शो की आप बता रहे हैं ना कि वो जिसको, उसमें भी मैंने जजमेंट रेफर करी थी मकतूल वाली, तब भी सर एग्जामिनर ने, क्योंकि ही हैज नॉट आस्क्ड दैट। नहीं राजीव सर, अरे अहमद साहब, अब इस बात को यहीं छोड़ते हैं। देखिए सर, मैं एक लूंगा, बस मैं 1 ही मिनट लूंगा। अहमद साहब और राजीव सर और संजय जी का कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो ये लेटेस्ट जजमेंट को ये रेफर कर रहे हैं, उसमें इट इज सेड इन अ डिफरेंट और बेटर टर्म्स अकॉर्डिंग टू हिम। वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है शॉर्ट में, तो लोगों को हेल्प हो जाएगा। दैट इज हिज पॉइंट टू से। बट संजय जी, मैं आपको बता रहा हूँ, राजीव सर के कहने का पॉइंट ये है, आपने जहां ये पॉइंट उठाया कि आप नई जजमेंट्स को पढ़ें, इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो डेविएट ना हो जाएं अपने टाइम मैनेजमेंट में। जो भी डेफिनेशन है वो सर ने ऑलरेडी एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं लोगों को हेल्प हो, तो आप अपने एंड पे या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके या अपने हाथ से लिख, जो आप खुद के लिए प्रैक्टिस करेंगे वो हाथ से लिख के उसको शेयर कर दें। इन आपकी जो लाइन ऑफ थॉट है कि लोगों को हेल्प होगा, आसानी से समझ आएगा, वो गोल भी अचीव हो जाएगा और लोगों का टाइम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। सर का मेन कंसर्न है कि लोग अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए डेविएट ना हो, इसलिए ही वांट्स टू स्टॉप पीपल फ्रॉम रेफरिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स नाउ। तो आपसे यही है या रिक्वेस्ट है, आप अपने एंड पे या तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, लोगों को जरूर हेल्प होगा, आपका पॉइंट वेल टेकन है, या फिर आप अपने हाथ से लिख के जो खुद प्रैक्टिस करेंगे उसको पीडीएफ बना के शेयर कर दें। भेज दूंगा, यही चाहता था। आई वांट टू ऐड समथिंग। Thank you, sir. Thank you very much. Let us. Please. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. संजय जी कुछ और ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू।
बुराई कर रहे थे। Actually, मेरा तो यही था सर कि मेरे को तो ये 3-4 टर्म समझ में ही तब आए जब मैंने ये हेड नोट थोड़े पढ़े, और वो एक जजमेंट और एक दो और जजमेंट है। एक्चुअली इतना इतना शार्पली लिखा है 2 लाइन में कि इट इज नॉट अडेप्टिव इन आवर माइंड डायरेक्टली। थोड़ा सा एक्सप्लेन होके होता है तो इजीली अडेप्ट हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट फ्रेंडली विद दीज वर्ड इन डेली रूटीन। इसलिए कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन पे फोकस करने के लिए रिक्वेस्ट किया था कि जैसे आप एक्सप्लेन करते हो ना, वैसे ही डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ लोगों को शायद वो टर्म समझ ना आती हो, वो लैंग्वेज समझ ना आती हो, अच्छा रहेगा आप लोगों को हेल्प करने के एंगल से वो शेयर कर दें उतना ही पोर्शन, या तो हैंड रिटन और रही बात आपका जो अभी क्वेश्चन था कि मैंने सारे जजमेंट रेफर किए, एक्चुअली मैंने एक बुक थी उसमें पढ़ा था कि लॉ के एग्जाम में आपको सबसे पहले प्रिंसिपल है ना वो लिखना है, उसके बाद आप साइटेशन लिखेंगे। नहीं लोग सीधा साइटेशन लिख के आ जाते हैं, सर वो यूजफुल नहीं। प्रिंसिपल लिखा था That's सर, the लेकिन problem. क्वेश्चन में That's the elaborate problem. That is the thing. वो मैं अलर्ट करना चाह रहा था और कोई एनीवे संजय जी देखिए ऐसा होता है कि ये लीगल टर्म जो है ना वो वर्चुअली है, उसको समझना ना वो दिखता नहीं है कहीं पे, है ना। इसको समझने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपके आंखों के सामने से जाएगा और वो समझ में नहीं आता। और कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहां से आपको एग्जैक्टली वो समझा जाता है, कहते हैं ना कि बत्ती जल जाती है, बत्ती जल जाती है। राइट। तो ये जो पार्ट है ना इस तरीके का बत्ती जलना और बुद्ध का ज्ञान आ जाना, तो ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट स्किल सेट है। लोग अलग अलग तरीके से पिकअप करते हैं। कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं जो डेफिनेशन पढ़ करके भी पिकअप कर लेते हैं। तो ब्रिलियंसी लेवल यहीं से वो होता है। तो सबके अपने अपने डोमेन है, आपने शेयर किया अच्छी बात है, बट ये मेरा कंसर्न बिल्कुल कंसर्न था रिगार्डिंग द टाइमिंग और फोकस, ये 2 चीज से था। और तीसरा था कंसर्न टू द मार्क्स, हाउ मच मार्क्स वी कैन फेच इट अप। आपको अपने उन कमजोर स्टूडेंट की ज्यादा चिंता है, मैं आपके मेरिट वालों की चिंता कर रहा हूँ। इट इज द डिफरेंस। नहीं सर, आप जो है ना, मैं इस लाइन पे थोड़ा रिजर्वेशन हूँ। मैं आपको ये बताऊं, आप अपनी चिंता करें। अभी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी चिंता करें, दूसरे की चिंता आप अभी आप छोड़ें। वो चिंता मेरे लिए छोड़ दे टिल द एग्जाम, उसके बाद आप कीजिएगा, मैं नहीं रोकूंगा। क्योंकि इसमें यही होगा, इसमें ये होगा कि वो भी डूबेंगे आप भी डूबेंगे, वो संभावना ज्यादा है, रिस्क हाई हो जाएगा और मैं रिस्क नहीं लेने दूंगा किसी को। यू आर गाइडिंग, अच्छी बात नहीं है, रिस्क नहीं लेने दूंगा, ये मेरा कंसर्न है। बट अपने लिए आप उसको प्योरली कलेक्ट करें। ध्यान रखूंगा इनमें डूबू नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखूंगा। इट इज गुड फॉर मी, योर एडवाइस आई अप्रिशिएट। नहीं ये जानते हैं, ये स्ट्रैटेजिक है मेरा, मतलब ये लाइट मोड में नहीं है। एवरीवन हैज टू फोकस देयर ओन एट दिस मोमेंट, क्योंकि जहां आप एक दूसरे में इंटर करने लग गए ना तो वो बहुत ही ज्यादा तरीके से इंगेज आपको रखेगा, बट रिजल्ट में कुछ एट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। आपकी सजेशन मेरे लिए भी फायदा ये मेरा करेगी। एक्सपीरियंस है और ऑब्जर्वेशन है, इवन कहिए आपकी रिसर्च है तो गलत नहीं होगा। इसीलिए टोटल फोकस रखना और आपके लिए बेस्ट पार्ट है, यदि जितना आप डिस्कशन से अडॉप्ट करेंगे ना उससे ज्यादा आप उसको रीराइट करके अडॉप्ट करेंगे। मैं करूंगा, रीराइट करूंगा। और आप रीराइट करेंगे, ये मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं है सर, दिस इज फॉर द एंटायर ग्रुप who are there and who will listen this video in future, सबके लिए है। ओके सर, और ये छोटी छोटी चीजें जो है ना बहुत जरूरी है, ठीक है। वाइंड अप करें सर प्लीज, क्योंकि वो प्रिपरेशन का जो प्रोसीजर है ना उस पे हमने स्पेशली फोकस कर रखा है, और वही वो चीज है, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हमने गड़बड़ाते हुए देखा है बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन। मैंने थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स बताया, क्योंकि हमने, मैं बताऊं आपको, ये जो है ना वो मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि भैया हमने यहाँ से सीखा, लोग भी सीखेंगे, करेक्ट, वो सीखेंगे। बट
this is the experimental thing which can be done before the exam, after the exam. And after the exam लंबे समय में आप वो पढ़िए, समझिए, आराम से रहिए, वो ठीक है, दिमाग लगाइए. बट एट दिस जंक्चर जब आप लेक्चर शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 30 दिन भी नहीं बचा है, 4-4 पेपर है, अभी नहीं, अभी नॉट अलाउड. ओके. यस, यू कैन डू एट योर ओन रिस्क. जहां डिसिप्लिन नहीं है वहां डिजास्टर. ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू. Thank